सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। जो ये बोल रहे हैं पूरे सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जो हमारा भाई आदिल है उसका नाम किसी ने नहीं लिया, जो घोड़े वाला जिसने सभी की मदद की, और जो वहां के लोकल दुकानदार उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। ऐसे क्यों छुपाया जा रहा है? কাশ্মীরের পহেলগাঁও ঘটনার 72 ঘন্টা কাটতে চলল। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কি? মূল মিডিয়া ও কেন্দ্রীয় শাসক দল বিষয়টিকে হিন্দু মুসলিম হাতিয়ার করে হিন্দু মুসলিম জাতিসত্তার ছাইচাপা আগুনে হাওয়া দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন? সামনে বিহার ও বাংলায় নির্বাচন। সুতরাং হিন্দু আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দু খাত্রে মে হ্যায় তত্ত্বটি আরো জোরালো করা দরকার। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষ ও প্রাক্তন সেনাকর্তারা প্রশ্ন তুলছেন, সেনাবাহিনীতে 1 লক্ষ পদ ফাঁকা কেন? 2024-এর 1 অক্টোবর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর মোট সদস্য 11,05,110 জন। সেখানে থাকার কথা 11,97,520 জন, অর্থাৎ 92,410 জন জুনিয়র কমিশন অফিসারের ঘাটতি। শতাংশের হিসেবে 7.72%। অফিসার স্তরেও 2024-এর 1 জুলাই অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে মোট অফিসারের সংখ্যা 42,095 জন, যেখানে অনুমোদন 50,538 জন। ঘাটতি 16.71%। এই ঘাটতি কেন? না কোভিডের সময় 2 বছর নিয়োগ হয়নি, কিন্তু অবসর ও কাজ ছেড়েছেন প্রায় 1.2 লক্ষ সেনা অফিসার। সেই অভাব এখনো পূরণ হয়নি। 96,000 বর্গ কিলোমিটার নিয়ে কাশ্মীর। সেখানে কত সেনা মোতায়েন আছে তার কোনো স্পষ্ট পরিসংখ্যান নেই। যেখানে এই অমানবিক জঙ্গিহানা হয়েছে এলাকাটিতে রাস্তার অভাবে যানবাহন যায় না, একমাত্র হেলিকপ্টার ও ঘোড়াই ভরসা। প্রশ্ন ওঠে, এই এলাকায় পুলিশ বা সেনা প্রহরী ছিল না কেন? কেন এই প্রহরীহীন এলাকায় সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ভারতীয় সেনা ও গোয়েন্দা কর্মীদের ছুটি কাটাতে যেতে দেওয়া হলো? এটা যেমন ওমর আবদুল্লার রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, তেমন উদাসীনতা কেন্দ্রীয় সরকারের। বেশ কিছু নিন্দুকরা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্গম স্থানটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আসলে জঙ্গিদেরই প্রশ্রয় দিতে চেয়েছে। এখানে জঙ্গিদের হাতে পর্যটক নিহত হওয়ার ঘটনাটাকে হিন্দু মুসলিম ঘৃণাকে বাড়িয়ে তোলার সহায়ক করে তোলা হচ্ছে, যার প্রতিফলন ভোটের বাক্সে পেতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই এলাকায় নেই কোনো হাসপাতাল, এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসা শিবিরও নেই। যদি থাকতো তাহলেও অনেক আহত যারা পরবর্তীকালে মারা গেছেন তাদের হয়তো বাঁচানো যেতে পারত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন পুষ্ট মূল মিডিয়া তো এক কদম এগিয়ে। এমন এক দম্পতির ছবি বারবার দেখানো হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে 10 মিনিট আগেও এই হতভাগ্য দম্পতি জানতো না তাদের জীবনে কি নিদারুণ মৃত্যু এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই দম্পতি সমাজ মাধ্যমে নিজেরাই পোস্ট করে জানিয়েছেন যে আমরা তো মরিনি,
আমরা তো বেঁচে আছি। এই মিডিয়া এটা কি প্রচার করছে? শুনুন সেই ঘটনাটি। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है, बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी, प्लीज़ प्लीज़ माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली। बट वी आर अलाइव, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग कि उनके साथ हुआ है एंड इट्स अस इन द वीडियो एंड वी आर अलाइव। तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि RIP। प्लीज इसको रिपोर्ट करो। वी आर सो शैटर्ड विद दिस थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू। रिपोर्ट प्लीज फ्रेंड्स, रिपोर्ट all of you guys, please report to the Indian press and the news channels, humble request। বিরোধীদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু প্রাক্তন সেনাকর্তা ও বিবেকের ডাকে সেনারা কি বলছেন সমাজ মাধ্যমে, সেসব অনেক কিছুই ভাইরাল হয়েছে। এই বিষয়টি আপনারা অনেকেই দেখেছেন, যারা দেখেননি তাদের বলছি মন দিয়ে শুনুন, যদিও এই ভাইরাল ছবির সত্যতা দিগদর্শন যাচাই করেনি। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड, क्या बोलूं। कई बार है ना, इंडियन फोर्स को
फोर्स का तरह काम करने नहीं देते हैं। हमारा जवान्स को, सोल्जर्स को क्या डरा हो पता है? आगे वाला दुश्मन के बारे में नहीं, जो पीछे से जो हमारा इंडियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो ऑफिसर्स है, कोर्ट है, जजेस है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का तरह काम करना देना चाहिए। हम भी कश्मीर में बहुत सारा प्लेस में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ का रियलिटी है ना, जो ड्यूटी करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको देख के आया हूँ, करके आया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अदर कंट्रीज़ का फोर्स, इंडियन फोर्स का जो फ़र्क है ना, ड्यूटी करने का बहुत डिफरेंस है। हमारा इंडियन फोर्स ज़्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज़्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम है ही नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स को एक भी घटना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज़ में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज़ को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो क्या बोलूँ, एक ही है मेरा पॉइंट, फोर्स को फोर्स की तरह काम करने दो, ये चीज़ कभी नहीं होगा। এক বছর আগের ঘটনা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনে কতটা ভূমিকা নিয়েছেন এবং কতটা সফল হয়েছেন সে ব্যাপারে বুক ঠুকে কি বলেছিলেন সেটা একবার শুনবেন নাকি? मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तावित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं। ঘটনার পর থেকে মূল মিডিয়া চিলচিৎকার শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নাকি ভীষণ ক্রুদ্ধ, এবার পাকিস্তানকে কবরস্থানে বদলে দেওয়া হবে। আমরা ভাবছিলাম যে সেদিন রাতেই বোধহয় ভারত করাচি দখল করে নেবে, কেননা আমেরিকা ও ইসরায়েল ভারতের পাশে এসেছে। কিন্তু কি হলো, পর্বতের মুশিক প্রসব। নেওয়া হচ্ছে ভীষণ কঠিন সব সিদ্ধান্ত। কি সব সিদ্ধান্ত চলুন একবার দেখে নিই। শোনা যাচ্ছে ভারতের সেনাবাহিনী ক্রমশ নাকি এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের দিকে, অর্থাৎ পাকিস্তানকে ওই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো একটা উচিত সবক দেওয়া হবে। তার আগে ডিপ্লোম্যাটিক কিছু সাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কী সব কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? ভারত সিন্ধু জনবন্টন চুক্তি বাতিল করেছে এবং আটেরি ওয়াগা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানও পাল্টা সব বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তান তাদের আকাশসীমা ভারতের বিমানের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের ভিসা বাতিল করেছে। পাকিস্তানও হুমকি দিয়েছে বিষয়টি তারা যুদ্ধ হিসেবেই দেখবে। পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানও সিমলা চুক্তি সহ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সমস্ত স্থগিত রেখেছে। ইসলামাবাদ থেকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। পাকিস্তান ভারতীয়দের সার্ক ভিসা বাতিল করেছে।
শুধু শিখ পুণ্যার্থীদের জন্য ভিসাটি বলবৎ রেখেছে। নয়াদিল্লি পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মীদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে এবং তাদের দ্রুত দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে। পাকিস্তানও তাই করেছে। তাহলে কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে আমরা এমন কি একটা বড় ভূমিকা নিলাম? অবশ্য এ ব্যাপারে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই আরও সবিস্তারে বলতে পারবেন। মনে রাখা দরকার, পুলওয়ামার ঘটনার পরও ভারত সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করেনি। এবারে ব্যতিক্রম। এর ফলে হাতে না মেরে পাকিস্তানকে ভাতে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন আছে। সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করে পাকিস্তানের প্রাপ্য 70% জল আটকাতে ভারতের যে পরিকাঠামোগত প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার, সেটা কি বাস্তবে সম্ভব হবে? উল্টো দিকে পাকিস্তান যে সিমলা চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেছে, তাতে নিয়ন্ত্রণ রেখা আর পাকিস্তান মানবে না। প্রশ্ন আরও আছে, পাকিস্তানের শাসক ও জনগণকে শিক্ষা ভারত কতটা দেবে? তার চেয়ে বড় কথা ছিল কাশ্মীরে আতঙ্কিত পর্যটকদের ফেরত আনার বিষয়। কিন্তু 24 ও 25 এপ্রিল শ্রীনগর থেকে কলকাতা আসার টিকিটের দাম উঠে গিয়েছিল 82,000 টাকা। ভারত সরকার নাকি বেসরকারি সংস্থাগুলিকে স্বাভাবিক মূল্য নেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করে। একমাত্র টাটা নিয়ন্ত্রিত এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়া কেউ সে নির্দেশ গ্রাহ্য করেনি। নিজের দেশের লোভী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যে সরকার, তারা বিদেশি শত্রুকে কিভাবে শাস্তি দেবে? ইতিমধ্যেই ভারত নাকি অনেক কঠিন কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে, এরকমই তো সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। কি করা হয়েছে না, 2 জঙ্গির কাশ্মীরের বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, এমনটাই নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো মূল মিডিয়া কাশ্মীরের সেই মুসলিম ঘোড়া চালক বা বাংলার শহীদ সেনা ঝন্টু শেখকে নিয়ে কোনো প্রতিবেদনে উৎসাহী নয়। এই বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে বরং কয়েকটি ভাইরাল হওয়া ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন আপনাদের। 17 তারিখে এসছি, এসে এমনি শ্রীনগরে প্রথম এলাম, এসে সাইট সিন করলাম, লেক, ডাল লেক, মোগল গার্ডেন সব দেখে 18 তারিখে গিয়েছিলাম আমরা সোনমার্গ। সোনমার্গে যাওয়ার সময় দেখলাম রাস্তায় 50 থেকে 100 মিটারের মধ্যে সব সিআরপিএফ জওয়ান দাঁড় করানো আছে। প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, তার মধ্যেও তারা দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি ভাবছি যে এদিকে এত সিকিউরিটি, ঠিক আছে, ওটা 18 তারিখ চলে গেল। 19 তারিখে আমরা গুলমার্গ গেলাম, একই অবস্থা। যখন আমরা কালকের আমরা পহেলগাঁও যাচ্ছি, তখন দেখলাম একটাও রাস্তায় একটাও সিকিউরিটি নেই, একটাও সিঙ্গেল সিকিউরিটি নেই। মানে হামলার আগে কোনো নিরাপত্তা ছিল না ওই এলাকায়? কোনো নিরাপত্তা ছিল না। আমি একেবারে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, আমি তো অনেক আমার সাংবাদিক বন্ধু ফোন করেছিলেন, আমি বলেছি কালকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হোক রাস্তা এবং ওই এলাকায়, বেতাব ভ্যালি, তারা আরু ভ্যালি, তারপরে ওই আরেকটা জায়গার নাম ভুলে যাচ্ছি আমি, চন্দনওয়ারি, যেখান থেকে অমরনাথ যাত্রা হয়, লঙ্গর খানে খোলা হয়, চন্দনওয়ারি, কোনো সিকিউরিটি ছিল না কোনো। আমি তো মানে করছি যে সিসিটিভির ফুটেজ বের করা হোক ওই জায়গা। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी, इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है।
उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक, गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, अराउंड 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी, और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि इसका फायदा आतंकवादी उठा रहा है। अपने अंदर के हिंदुस्तानी को और अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए। ये मत भूलिए कि आम लोगों की मौत से ना आम हिंदू खुश होता है, ना आम मुसलमान। इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत की इस राजनीति में खुद को बलि मत होने दीजिए। जो 27 लोग मर गए हैं, उन्हें उनकी जी गई जिंदगियों के लिए याद कीजिए। उन्होंने जो अच्छा काम किया है अपने लाइफ में, उसके लिए याद रखिए। उन्हें इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनकर मत रहने दीजिए। इस सरकार से उनकी मौत की अकाउंटेबिलिटी मांगिए। उन्हें जान क्यों गंवानी पड़ी, ये सवाल सरकार से पूछिए, दूसरे हिंदुस्तानियों से नहीं। हम इंतजामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस कानूनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। ये एक बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। बेगुनाह था बेचारा। अल्लाह के कर एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कमाए वाला से एक बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। कल जो बहुत ही घटिया हरकत हुई है टेररिस्टों की वजह से, और आपका बेटा जो है उसमें शहीद हुआ है। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया।
कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा, इसका एक बच्चा था वो बीमार गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है। हाँ सर, मैं पहलगाम में और ट्रूप्स भेज रहा हूँ सर। तुरंत सर, तुरंत। हेलो सर। तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? Get out! सर, अब लाइव न्यूज चैनल पे हैं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा। पहलगाम अटैक के बाद इस देश के लोगों के कुछ सवाल है जिनके वो जवाब चाहते हैं सर। सिर्फ 1 मिनट। सर, ये टेररिस्ट लोग बार बार इंडिया में आ कहाँ से रहे? ये जो इस देश के लोग लाखों करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं, क्या वो उसके बदले अपनी सेफ्टी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? पिछले 3 साल से इंडियन आर्मी में ना के बराबर रिक्रूटमेंट हुआ है सर। क्यों इंडियन आर्मी की जॉब्स 1,80,000 से कम कर दी गई सर? बाय द वे, ये सिर्फ इस देश के लोगों का नहीं, आपके फ्रेंड का भी सवाल है। For 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? You saved money to get these people killed, damn you! बेताब वैली, आरू वैली, चंदन वैली, इन सब पे आर्मी तैनात रहती है सर। लेकिन पहलगाम की बैसरन वैली, जो कि एक ज्योग्राफिकली चैलेंज वैली है, जहाँ पे अटैक हुआ, जहाँ पे दिन के 4 से 5 हजार टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे आर्मी नहीं थी सर। कोई स्पेसिफिक रीजन? आंसर मी सर। आपका 1 मिनट पूरा हुआ। नाउ प्लीज लीव। थैंक यू सर। सर, जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, हम सब लोगों को इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, बट क्या कुछ ऐसा है जो आप इस देश के लोगों से छुपा रहे हैं सर? आतंकवादी आए थे वहाँ पर, जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से, जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश या सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर, वहाँ पे सैलानी जो वहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से लोग वहाँ पर हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाया गया जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही गोदी मीडिया को शूट करता है, यही सरकार को शूट। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम इधर गेंद है। उमर वो ताजुल दे यार। जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था, पूरा वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चलाए थे। मतलब जैसे कि ये कैमरामैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें भाई कोई लेना देना नहीं, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। तो आया सामने, बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहां पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, तो किसी को हिलना भी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। गोदी मीडिया का एक और झूठ पकड़ा गया। विनय नरवाल का यह आखिरी वीडियो बताया जा रहा था और बता रहे थे हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों बता दें, यह जो है यशिका शर्मा और आशीष शेरावत का वीडियो है और ये दोनों लोग जीवित हैं। दोनों लोगों के घर पे फोन आ रहा है कि तुम लोगों का वीडियो में दिखाया जा रहा है मर गए हो। ये लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग तो जीवित हैं। ये लोग सामने आके वीडियो बना के कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया कैसे कार्य कर रही है, कि सारे मीडिया चैनल हम लोगों का एक पुराना वीडियो दिखा के और दिखाया जा रहा है कि यह विनय नरवाल जो नेवी अफसर है वे हैं, अपने पत्नी के साथ आखिरी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में ये लोग कह रही हैं कि ये लोग जिंदा हैं और आशीष शेरावत, यशिका शर्मा का यह वीडियो है। तो गोदी मीडिया का एक और झूठ एक्सपोज हुआ। जो ये बोल रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जो हमारा भाई आदिल है, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। जो घोड़े वाला,
जिसने सभी की मदद की, और जो वहाँ के लोकल दुकानदार, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। ऐसे क्यों छुपाया जा रहा है? पहले यहाँ से जो पिछले साल अटैक हुआ रियासी में, जहाँ पे एक बस को गिरा दिया गया और टेररिस्ट थ्रू अटैक हुआ, वहाँ पे 9 लोगों को मारा गया। उससे पहले गंदरबल इलाके में जहाँ पे 7 लोगों को मारा गया। इस चीज का जिम्मेवार कौन है? और भाजपा पार्टी कहती है कि 370 हटने के बाद टेररिस्ट हट जाएगा। अब भाई साहब 3 बार अटैक हो चुका है, कोई तो मुंह तोड़ जवाब दो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको मुद्दा नहीं बनाएं कि हिंदू मुस्लिम, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये इंसानियत का मुद्दा है, इसको इंसानियत से लेके चलें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाजपा पार्टी से, यहाँ जो हमारी लोकल लीडरशिप है, प्लीज इस टेररिज्म को हटाएं। लोग यहाँ पे, यात्री यहाँ पे आके डर रहे हैं, पर लोग ये नहीं दिखा रहे कि जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह उन्हें खाना खिला रहे हैं। पहलगाम में फ्री ऑफ कॉस्ट रूम और खाना दिया जा रहा है। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए और हमारे जम्मू एंड कश्मीर से टेररिज्म को हटाया जाए। मुसलमान पूरा अपना दरवाजा खोल दिया और मुसलमान भाई हिंदू भाई के कंधे पे बैठा बैठा के वहां पे हेल्प किए, मदद किए और जान बचाने की काम किए। ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये लोग असलियत नहीं दिखाएंगे, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। क्या लिख रहे हो यार कि कश्मीर मत जाओ, नहीं तो कलमा पढ़ के जाओ, और तैयार रहो, अगर कलमा पढ़ोगे तो बचोगे, और अगर कश्मीर नहीं जाओगे तो इन कश्मीरी मुसलमानों का ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। क्या लिख रहे हो तुम लोग? सैयद आदिल हुसैन का नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं जानते हो? वो कोई बैट्समैन नहीं है, आईपीएल का खिलाड़ी नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है। सैयद आदिल हुसैन वो था जो पहलगाम के इस कायराना आतंकवादी घटना में आतंकवादियों से भिड़ गया बंदूक छीनने में, और अपने पीछे हमारे उन भारतीय साथियों को, जिनको तुम हिंदू बोलोगे, मैं बोलूंगा मेरे भारतीय साथियों, उनको बचाने के लिए खुद शहीद हो गया। सैयद आदिल हुसैन अपने घर का इकलौता चिराग था, उसके घर में कमाने वाला केवल एक था। वो आतंकवादियों से बंदूक छीनने लगा कि नहीं, निर्दोषों के ऊपर, बेगुनाहों के ऊपर मैं तुम्हें गोली नहीं चलाने दूंगा। वो एक कश्मीरी युवक था। हां, तुम बोलोगे वो मुसलमान है, मैं बोलूंगा नहीं, आदिल हुसैन एक अमर शहीद भारतीय नागरिक था। किस एंगल से देखते हो तुम लोग? कहां से लाते हो इतने नफरत है? वो भी तो मुसलमान था, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहा था ना भाई। फिर तुम लिखते हो, और कल गोदी मीडिया, रिपब्लिक टीवी कैसे भगाया गया लाल चौक से, जो लोग जिंदा है उनको मरा हुआ बता रहे थे। क्या ये मीडिया का स्तर रह गया? मेरे भाई, इतना नफरत मत करो यार, इतना नफरत मत करो। इतना आसान नहीं है हिंदू और मुसलमान होना। वो शहादत दे के भी हिंदुओं के लिए जान दे गया, याद रखना।
ये देश सेक्युलरवादी है, ये देश सेक्युलरवादी था, ये देश सेक्युलरवादी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। राजनीतिक दांव पेच अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाएगा, किस मर्यादा के भीतर चलेगा, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।